Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session, we will discuss about acid radical and basic radical. So let's start with the topic. Now what are acidic radicals? So if we have an acid and if we remove H plus ion from that acid, then the remaining ion will be known as acid radical. For example, in HCl, अगर हम HCl के अंदर से H plus ion को remove करते हैं, then the remaining ion, that is chloride ion, that will be the acid radical. Similarly, in HNO3 nitric acid, if H plus ion is removed, then NO3 negative ion will be the acid radical. In acetic acid, if H plus ion is removed, then the remaining ion, that is acetate ion, will be the acid radical. Now in sulfuric acid, that is H2SO4, if 2H plus ions are removed, then the sulfate ion will be the acid radical. In carbonic acid H2CO3, if H plus ions are removed, then carbonate ion will be the acid radical. Now in HBr, if H plus is removed, then the Br negative ion will be the acid radical. Similarly in HF, fluoride is acid radical. In HI, iodide is acid radical. In H3PO4, PO43 negative is the acid radical. HClO4, ClO4 negative is the acid radical, and in HNO2, NO2 negative is the acid radical. So अगर हमें किसी भी एसिड के अंदर से H plus आयन को रिमूव करना हो, then the remaining ion will be the acid radical. Now basic radical, अगर कोई बेस है हमारे पास में और हम उस बेस के अंदर से OH minus आयन को रिमूव करते हैं, then the remaining ion will be the basic radical. For example, in NaOH, Na positive is the basic radical, क्योंकि अगर NaOH को हम split करें, then Na positive and OH negative. If OH negative is removed, then the remaining ion will be Na positive ion. So Na positive ion will be the basic radical. Similarly, in KOH, K positive is the basic radical. LiOH में क्या होगा? Lithium positive will be the basic radical. Magnesium hydroxide में 2 OH negative groups हैं. So अगर 2 OH negative ions को remove करेंगे, then Mg2 positive will be formed, and that will be the basic radical. Similarly, in calcium hydroxide, calcium 2 positive is the basic radical. In RbOH, if OH is removed, then Rb positive is the basic radical. In cesium OH, if OH is removed, then cesium plus is the basic radical. Now in barium hydroxide, if 2 OH negative ions are removed, then Ba2 positive will be the basic radical. In FeOH thrice, if 3 OH negative ions are removed, then Fe3 positive ion will be the basic radical. Similarly, in CuOH twice, if 2 OH minus ions are removed, then Cu2 positive will be the basic radical. And in ZnOH twice, zinc 2 positive is the basic radical. So बेसिक रेडिकल के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी बेस होगा उसके अंदर से जो OH नेगेटिव आयन है उसको रिमूव करेंगे, देन द रिमेनिंग आयन विल बी द बेसिक रेडिकल. सो आज के सेशन में हम सिर्फ एसिडिक रेडिकल्स की डिटेक्शन के मेथड्स को चेक करेंगे कि हमें कोई भी अननोन सैंपल गिवन है और उस सैंपल के अंदर हमारे पास में एसिड रेडिकल गिवन है, एसिड रेडिकल गिवन है, तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि उसके अंदर कौन कौन से रेडिकल्स गिवन है. सो इसके लिए हम एक बेसिक प्रोसीजर को फॉलो करेंगे. जो एसिड रेडिकल्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सो हम इन्हीं कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अभी एसिड रेडिकल का डिटेक्शन मेथड देखेंगे. नाउ फर्स्ट कैटेगरी इज इंडिपेंडेंट ग्रुप. इंडिपेंडेंट ग्रुप के अंदर हम फॉस्फेट आयन, बोरेट आयन, एंड सल्फेट आयन, इनको देखेंगे. मतलब इंडिपेंडेंट ग्रुप की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर हम फॉस्फेट, सल्फेट एंड बोरेट आयन, इनको हम चेक करेंगे कि इनको किस तरह से कोई भी सैंपल है उससे हम कैसे इनकी एनालिसिस कर सकते हैं. नाउ फॉर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप, इसमें हम हैलाइड्स लाइक
क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड and nitrate, acetate, ऑक्सलेट, इन आयंस के बारे में पढ़ेंगे। और डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप है, उसके अंदर हम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, NO2 नेगेटिव, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो एसिड रेडिकल को हमने बेसिकली 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, इंडिपेंडेंट ग्रुप, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप एंड डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप। डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट जो आयंस हैं उनका डिटेक्शन हम अभी 1 by 1 डिस्कस करेंगे। नाउ फॉर इंडिपेंडेंट ग्रुप में जैसे अभी हमने पहले चेक किया है कि इंडिपेंडेंट ग्रुप में फॉस्फेट, बोरेट और सल्फेट ग्रुप आते हैं। तो अगर इंडिपेंडेंट ग्रुप है हमारे पास में और उसमें सल्फेट और सल्फाइड का कॉम्बिनेशन अगर हमें गिवन है, मतलब हमारे पास कोई सॉल्ट है और कोई सॉल्ट है उसके अंदर सल्फेट और सल्फाइड में से कुछ भी आयन प्रेजेंट है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे पास आइदर सल्फेट है या सल्फाइड है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट कैरी आउट करेंगे। इस टेस्ट को हम BaCl2 टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम बेरियम क्लोराइड जो रिएजेंट है उसका यूज करेंगे। नाउ हमें क्या करना है कि जो हमारे पास सॉल्ट गिवन है उस सॉल्ट के अंदर से पिंच ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर को टेस्ट ट्यूब में डिसॉल्व करना है, और उसके बाद उसके अंदर BaCl2 है उसको ऐड करना है। सो जैसे हम सॉल्यूशन के अंदर बेरियम क्लोराइड को ऐड करेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी अगर सल्फेट या सल्फाइड में से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है। सो अगर सल्फेट और सल्फाइड प्रेजेंट है मींस व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगी जो इस तरह से अपीयर होगा। नाउ जो प्रेसिपिटेट है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने के बाद में दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, आइदर जो प्रेसिपिटेट है दैट विल डिसॉल्व और द प्रेसिपिटेट डज नॉट डिसॉल्व। सो अगर प्रेसिपिटेट डिसॉल्व होता है मींस उसके अंदर जो सैंपल हमें प्रोवाइड किया गया था उसमें सल्फाइड आयन था, और अगर प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होता है मींस उस जो सैंपल था उसमें सल्फेट आयन था। तो इसमें बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन फॉलो हुई वो क्या थी कि शुरू में अगर सैंपल है और उसके अंदर हमारे पास में सल्फाइड आयन था, तो जैसे ही हमने उसमें BaCl2 ऐड किया तो बेरियम सल्फाइड की फॉर्मेशन हुई विद रिलीज ऑफ 2 क्लोराइड नेगेटिव। सो जो BaSO3 था यही वो कंपाउंड था जो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा था जब सल्फाइड आयन प्रेजेंट था। नाउ इसके अंदर जब हमने HCl ऐड किया तो यहां से BaCl2 प्लस H2O प्लस SO2 गैस है वो इवॉल्व हो गई। मीन्स जो BaSO4 का जो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था वो क्या हो गया है, हम डिसॉल्व हो गया। तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया मीन्स हमारे पास में सल्फाइड आयन था। नाउ अगर सैंपल के अंदर सल्फेट आयन था तो सल्फेट आयन के अंदर जैसे ही BaCl2 ऐड करेंगे, BaSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए प्लस 2 क्लोराइड नेगेटिव। सो दिस इज द व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर सल्फेट आयन प्रेजेंट था। तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट था वो अगर सल्फेट या सल्फाइड कोई भी आयन प्रेजेंट था तो दोनों में फॉर्म हुआ है। सल्फाइड के केस में वो BaSO3 प्रेसिपिटेट है और सल्फेट के केस में वो BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट है। नाउ जैसे ही हमने इसके अंदर HCl ऐड की, ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो डिसॉल्व नहीं होता है, मींस जो आयन था सैंपल में जो एनायन था दैट वाज सल्फेट। सो इस तरह से अगर सल्फेट या सल्फाइड आयन हमें गिवन है तो उनको हम BaCl2 टेस्ट के बेसिस के ऊपर सेपरेट आउट कर सकते हैं। नाउ टेस्ट फॉर फॉस्फेट। नाउ जो इंडिपेंडेंट आयंस है उसमें हम फॉस्फेट के लिए टेस्ट करेंगे। अगर जो सैंपल है सैंपल के अंदर फॉस्फेट आयन प्रेजेंट है तो उसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, इसमें भी सेम वैसे ही जैसे हमने पहले सल्फेट और सल्फाइड के केस में किया है। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे और उसमें वाटर ऐड करेंगे। नाउ जो सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड
HNO3 को ऐड करेंगे। जो सैंपल फॉर्म हुआ है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस HNO3 उसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद में हम उसमें अमोनियम मॉलिब्डेट ऐड करेंगे। अगर अमोनियम मॉलिब्डेट ऐड करने के बाद में येलो प्रेसिपिटेट आता है जो कुछ इस तरह से अपीयर होगा, सो जो सैंपल है उसके अंदर क्या है, फॉस्फेट आयन प्रेजेंट है। सो इसको हम जो केमिकल रिएक्शन इसमें कौन सी इन्वॉल्व होगी उसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास में फॉस्फेट आयन प्रेजेंट था और उसके अंदर हमने NH4 ट्वाइस MoO4 मतलब अमोनियम मॉलिब्डेट ऐड किया, सो यहां से ये कंपाउंड फॉर्म होगा प्लस 3MoO4 2 नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम दैट इज HNO3, यहां से कन्वर्जन हुआ H2MoO3 में प्लस KNO3। नाउ जो H2MoO3 दिस आयन मीन्स दिस मॉलिक्यूल ये फर्दर डिसोसिएट होगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ MoO3 प्लस वाटर। नाउ फाइनली क्या होगा, जो येलो प्रेसिपिटेट आया था वो किस वजह से आया था कि जो अमोनियम फॉस्फेट सैंपल में जो फॉर्म हुआ था प्लस MoO3 जो ऑब्टेन हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये कंबाइन करके और यहाँ से अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट जो कंपाउंड है उसकी फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट कंपाउंड है ये येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट एंड दिस इज द येलो कलर प्रेसिपिटेट। सो येलो पीपीटी जो ऑब्टेन हुआ था वो इस कंपाउंड की फॉर्मेशन की वजह से ऑब्टेन हुआ था। तो इस तरह से हम फॉस्फेट का टेस्ट है उसको कैरी आउट कर सकते हैं। नाउ इंडिपेंडेंट ग्रुप के अंदर एक और आयन है दैट इज बोरेट। बोरेट अगर सैंपल में गिवन है तो उसको हम किस तरह से चेक करेंगे, इसके अंदर भी हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट को ऐड करेंगे एंड वाटर ऐड करेंगे और यहाँ से हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। ना सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे एंड इथेनॉल ऐड करेंगे और जब इनके एडिशन के बाद जो सैंपल है उसको हम हीट करते हैं तो ग्रीन एज फ्लेम ऑब्टेन होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सैंपल है उसके अंदर बोरेट आयन प्रेजेंट है। सो इसके अंदर जो बेसिकली रिएक्शन इन्वॉल्व हुई थी वो क्या थी कि अगर जो सैंपल है उसके अंदर बोरेट आयन प्रेजेंट है, सो दिस इज द बोरेट आयन, और इसको जब हमने H2SO4 के साथ ट्रीट किया, सो यहाँ से जो H2SO4 था वो सल्फेट आयन यहाँ से रिलीज करेगी एंड बोरिक एसिड यहाँ से फॉर्म होगी। दिस इज बोरिक एसिड। नाउ ये जो बोरिक एसिड है दिस विल रिएक्ट विद C2H5OH मीन्स इथेनॉल के साथ में जब ये बोरिक एसिड रिएक्ट करेगी देन ट्राई इथाइल बोरेट की फॉर्मेशन होगी जो ग्रीन एज फ्लेम देगा। सो यहाँ से ट्राई इथाइल बोरेट फॉर्म हुआ है with 3 molecule of water, यहाँ से 1 molecule of boric acid will react with 3 molecule of ethanol and there will be formation of triethyl borate. So जो triethyl borate obtain हुआ है this will give the green edge flame. So this is green edge flame. So borate के टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, सैंपल को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे और इथेनॉल ऐड करेंगे। अगर ग्रीन एज फ्लेम ऑब्टेन होती है मींस जो सैंपल था उसके अंदर बोरेट आयन प्रेजेंट है। ना जो सेकंड कैटेगरी थी उसमें हमने देखा था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैटेगरी, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप्स। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो ग्रुप था उसके अंदर कौन कौन से आयन हैं उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। सो क्या करेंगे हम कि जो सैंपल है सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है सॉल्ट प्लस वाटर उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को ऐड करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर ऐड करने के बाद में
कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल अगर हमें ऑब्टेन होती है, मीन्स हमारा जो सैंपल है उसमें क्लोराइड आयन होने के चांसेस है। सो यहाँ से हम एक रफ आइडिया ले सकते हैं, मतलब ये एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है जिससे हमें ये आइडिया हो सकता है कि इसके अंदर ये आयन प्रेजेंट हो सकता है। देन उसके बाद जो भी आयन जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा डाउट है कि ये आयन प्रेजेंट हो सकता है, उसका हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। सो अगर सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया और वहां से कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल ऑब्टेन हुई, मींस क्लोराइड आयन हो सकता है। अगर येलो ब्राउन वेपर्स ऑब्टेन हुए, मींस ब्रोमाइड आयन हो सकता है। अगर वायलेट वेपर्स ऑब्टेन हुए, मींस आयोडाइड आयन होने के चांसेस है। नाउ कलरलेस गैस विद विनेगर स्मेल, विनेगर स्मेल अगर होगा तो मतलब एसिटेट आयन है। अगर कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, सो क्या होगा यहाँ से ऑक्सिलेट आयन होने के चांसेस है। अगर हमने सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया है और उसके बाद एक गैस इवॉल्व होती है जो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है, सो दैट मे बी द ऑक्सिलेट आयन। एंड अगर रेडिश ब्राउन गैस अगर ऑब्टेन होती है विद पंजेंट स्मेल, देन NO2 गैस विल बी रिलीज्ड। सो यहाँ से हम एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि अगर हमने सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया और इस तरह से हमने कुछ भी ऑब्जर्व किया है, तो हम उसके लिए एक बेसिक रफ आइडिया ले सकते हैं और उसके बाद जिस आयन के ऊपर हमें डाउट है हम उसका कंफर्मेटरी टेस्ट कैरी आउट करके देख सकते हैं। सो ये कुछ आयन्स है जो हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप में डिस्कस करेंगे। नाउ टेस्ट फॉर नाइट्रेट। नाइट्रेट के टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने अभी पहले देखा है कि सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं और अगर NO2 गैस रिलीज होती है, मतलब उस सैंपल के अंदर नाइट्रेट या नाइट्राइट या फिर बोथ प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी है। सो अगर NO2 गैस रिलीज होती है तो हम वहां से क्या करेंगे, रिंग टेस्ट कैरी आउट कराएंगे फॉर नाइट्रेट। सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, मीन सॉल्ट प्लस वाटर ऐड करेंगे, उसमें FeSO4 ऐड करेंगे। FeSO4 फेरस सल्फेट है, वो क्या होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, अदरवाइज जो टेस्ट है वो क्लियर नहीं आता है। सो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सैंपल के अंदर सॉल्यूशन के अंदर FeSO4 ऐड करेंगे, देन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे। अगर ब्राउन रिंग की फॉर्मेशन होती है, कुछ इस तरह से जो रिंग की फॉर्मेशन होती है, सो देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन। सो इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व हुई वो क्या थी, NO3 नेगेटिव। अगर सैंपल में नाइट्रेट है, सो दैट विल रिएक्ट विद H2SO4 and there will be formation of HSO4 negative plus HNO3. Now this HNO3 will react with Fe2 positive, that is from FeSO4 in presence of acid, that is H2SO4, and there will be formation of NO Fe3 positive ion and water. Now जो FeH2O6 3 positive है, that will react with that NO and there will be formation of FeH2O5 NO 2 positive charge on this compound and water. Now this is the brown ring compound. इस कंपाउंड की फॉर्मेशन की वजह से ब्राउन रिंग ऑब्टेन होती है और इस कंपाउंड की स्पेशलिटी क्या है कि इसमें जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। सो अगर ब्राउन रिंग ऑब्टेन होती है, मीन्स जो कंपाउंड है उसके अंदर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। बट यहाँ से एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बहुत बार क्या होता है कि नाइट्रेट आयन के साथ में नाइट्राइट आयन भी प्रेजेंट होता है, मतलब जो सैंपल है अगर उसके अंदर नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों की कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे अगर हम ये ब्राउन रिंग टेस्ट कैरी आउट कराएंगे तो ब्राउन रिंग फॉर्म होने की बजाय जो सैंपल है वो ब्लैकिश ब्राउन कलर का पूरा सैंपल फॉर्म हो जाएगा। तो अगर ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर पूरा सैंपल ब्लैकिश ब्राउन कलर का ऑब्टेन होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्दर रिएक्शन कैरी आउट कराएंगे सो दैट कि जो नाइट्राइट आयन था, मतलब NO2 नेगेटिव आयन है, उसको हम डिकम्पोज कर सके और उसको सैंपल में से रिमूव करके देन फिर हम नाइट्रेट का टेस्ट फिर से करेंगे। सो उसके लिए हम अभी आगे फर्दर डिस्कस करते हैं कि अगर कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होगी तो नाइट्राइट आयन को किस तरह से रिमूव करेंगे और देन
रिंग टेस्ट कैरी आउट करेंगे। नाउ अगर नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम वैसे ही पहले हम ब्राउन रिंग टेस्ट करके देखते हैं। अगर ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर अगर ब्राउन रिंग कंप्लीटली फॉर्म नहीं होती और सॉल्यूशन है वो ब्लैकिश ब्राउन कलर का पूरा सॉल्यूशन टर्न हो जाता है, मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर नाइट्राइट प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब नाइट्राइट प्रेजेंट है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अगर हमें नाइट्रेट चेक करना है मतलब हमें नाइट्राइट को रिमूव करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो सॉल्यूशन था मतलब सॉल्ट प्लस जो वाटर सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे और उसके अंदर यूरिया ऐड करेंगे और यूरिया ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। सो अगर जब हम सॉल्यूशन को बॉईल करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जो नाइट्राइट है वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो अगर सैंपल में नाइट्राइट है तो नाइट्राइट डिकम्पोज हो जाएगा। हीटिंग को कंटिन्यू करेंगे और गैस है जो उसमें NO2 गैस है वो क्या होती रहेगी, रिलीज होती रहेगी। मतलब N2 गैस, जो नाइट्राइट है वो डिकम्पोज करके N2 गैस है उसकी फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो NO2 नेगेटिव था, मतलब जो सॉल्ट था, सपोज कि NO2 सॉल्ट था, that will be reacted with H2SO4 and there will be formation of KHSO4 plus HNO3. Now this urea NH2CO NH2 this will react with HNO2. Here there will be formation of HNO2 not HNO3. HNO2 फॉर्म हुआ था। सो यहाँ से जब हम कंटिन्यू हीटिंग करते रहेंगे मतलब जो नाइट्राइट था वो N2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अब जो सैंपल है उसके अंदर से N2 गैस की फॉर्म में नाइट्राइट रिलीज हो चुका है। तो अब अगर क्या कर सकते हैं, हम नाइट्रेट के लिए इंडिविजुअली ब्राउन रिंग टेस्ट कैरी आउट करा सकते हैं और वहां से हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी, ब्राउन रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो फर्स्ट चीज कि अगर हमारे पास कोई सैंपल गिवन है नाइट्रेट और नाइट्राइट का अगर हमें चेक करना है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब ऐड किया NO2 गैस रिलीज हुई, मतलब आइदर नाइट्रेट और नाइट्राइट इज प्रेजेंट और बोथ आर प्रेजेंट। सो फर्स्ट क्या करेंगे, ब्राउन रिंग टेस्ट करेंगे। ब्राउन रिंग टेस्ट करेंगे, सैंपल अगर पूरा ब्लैकिश ब्राउन हो जाता है तो उसका मतलब है नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों प्रेजेंट है। तो फर्स्ट इज कि नाइट्राइट है उसको हम डिकम्पोज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ N2 और उसके लिए हम ये पूरा प्रोसीजर यहाँ से जो यूरिया टेस्ट है इसको कैरी आउट करेंगे और जो नाइट्राइट है उसको डिकम्पोज करके N2 की फॉर्म में रिलीज कराएंगे। देन जो नाइट्रेट है सैंपल के अंदर उसको हम इंडिविजुअली ब्राउन रिंग टेस्ट कैरी आउट करेंगे। नाउ टेस्ट फॉर हैलोजन। हैलोजन में हम क्या चेक करेंगे कि अगर हमारे पास ब्रोमाइड, क्लोराइड और आयोडाइड में से कोई भी हैलोजन अगर हमें प्रेजेंट है जो हमारा सॉल्ट गिवन है उसमें, तो उसको हम किस तरह से चेक करेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे, उसमें वाटर ऐड करेंगे, सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे एंड डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे। उसके बाद में सिल्वर नाइट्रेट को हम ऐड करेंगे। इस टेस्ट को हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हम सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट यूज करते हैं। सो सिल्वर नाइट्रेट जैसे ही हम सैंपल के अंदर ऐड करेंगे, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो। सो इस तरह से दिखेगा कुछ व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है मतलब जो हैलोजन है वो क्या है, क्लोराइड। अगर पेल येलो प्रेसिपिटेट मिलता है मींस जो हैलोजन है दैट इज ब्रोमाइड। इफ येलो प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन देन द हैलोजन इज आयोडाइड। ना यहाँ से हम क्या एक रफ एस्टिमेट, जैसे क्लोराइड अगर मिलता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो गया, लेकिन अगर ब्रोमाइड और आयोडाइड है तो हम इनको किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे, मतलब ये एक रफ आइडिया है कि क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड हमें इस तरह से ऑब्टेन हो सकते हैं ना। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी प्रेसिपिटेट हमें ऑब्टेन हुए थे उसके अंदर हम एक्विस अमोनिया को पास कराएंगे। सो यहाँ से बेसिक अगर रिएक्शन देखें, अगर क्लोराइड आयन प्रेजेंट था और उसके अंदर हमने सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया था मींस यहाँ से जो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था वो किसका था, AgCl का था। मतलब सिल्वर क्लोराइड है उसका क्या था, व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें
ऑब्टेन हुआ था। ना अगर इसके अंदर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हमने ऐड किया, सो यहाँ से AgNH3 ट्वाइस Cl, ये आयन प्रेजेंट, ये कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। सो मीन्स अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एडिशन के बाद में डिसॉल्व हो जाता है, मतलब वो क्या है, उस सैंपल के अंदर क्लोराइड आयन कंफर्म हो गया है। सिमिलरली अगर ब्रोमाइड आयन है तो ब्रोमाइड के लिए हम क्या करेंगे, ब्रोमाइड के अंदर AgNO3 को ऐड करेंगे। सो जो पेल येलो प्रेसिपिटेट था वो किसका फॉर्म हुआ था, दैट वाज ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, पेल येलो PPT। सिमिलरली अगर आयोडाइड है और उसके अंदर हमने AgNO3 ऐड किया, सो जो येलो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हुआ था वो सिल्वर आयोडाइड का ऑब्टेन हुआ था। सो दिस इज येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड। सो इस तरह से अगर हमारे पास में हेलोजेंस गिवन है तो उसको हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे, प्रेसिपिटेट का कलर चेक करेंगे, देन प्रेसिपिटेट की सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अगर वो सॉल्युबल है, मींस दैट व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑफ क्लोराइड आयन और AgCl मॉलिक्यूल। अगर पेल येलो प्रेसिपिटेट आता है मींस ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट था, अगर येलो प्रेसिपिटेट आता है मींस आयोडाइड आयन प्रेजेंट था। ब्रोमाइड और आयोडाइड में एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ये दोनों का जो कलर है वो ऑलमोस्ट रिजेंबल करता है, पेल येलो और येलो में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ब्रोमाइड और आयोडाइड है इसके लिए भी हम अलग से इसको भी डिसॉल्व करके देखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद में जो येलो प्रेसिपिटेट है वो डिसॉल्व हो जाता है, मींस उसके अंदर ब्रोमाइड आयन है। और अगर हमने एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ऐड किया है और उसके बाद भी अगर वो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होता है, मतलब वो क्या है, आयोडाइड आयन है। नाउ टेस्ट फॉर एसिटेट आयन। सो एसिटेट आयन के लिए क्या करेंगे, सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे टेस्ट ट्यूब में, वाटर ऐड करेंगे, इसको डिसॉल्व करेंगे, उसके बाद उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे। सो हमें क्या मिलेगी, विनेगर लाइक स्मेल मिलेगी। इसके लिए हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो सॉल्ट है उसको चाइना डिश के अंदर रख के और स्पैचुला है उससे क्रश कर सकते हैं और बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करेंगे। सो जैसे ही हम उसमें वाटर ऐड करेंगे या फिर H2SO4 ऐड करेंगे, हमें विनेगर की स्मेल ऑब्टेन होगी। विनेगर की स्मेल ऑब्टेन हुई मतलब जो सॉल्ट है उसके अंदर एसिटेट आयन प्रेजेंट है ना। उस एसिटेट आयन को कंफर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हमारे पास में यहाँ से जो सॉल्यूशन था उसमें हमने क्या किया है, इथेनॉल ऐड किया है। जैसे इथेनॉल ऐड करके हम हल्की सी हीटिंग करेंगे तो हमें स्वीट स्मेल एस्टर ऑब्टेन होगा। मतलब अगर स्वीट स्मेल एस्टर ऑब्टेन होता है मतलब क्या है, एसिटेट आयन है, वो क्या है, कंफर्म है। इसके लिए जो रिएक्शन है वो क्या है कि जो एसिटेट आयन था उसके अंदर जैसे ही हमने इथेनॉल ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस दैट इज H2SO4, सो यहाँ से जो एस्टर बना है CH3COO C2H5 प्लस वाटर, सो दिस इज द एस्टर और इसी एस्टर की वजह से हमें स्वीट स्मेल ऑब्टेन हुई है। सो दिस इज द टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ एसिटेट आयन इन द गिवन सैंपल। नाउ टेस्ट फॉर ऑक्सलेट आयन। अगर सैंपल है उसके अंदर ऑक्सलेट एनायन प्रेजेंट होगा तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, किस तरह से ऑक्सलेट आयन को कंफर्म करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे, उसमें वाटर ऐड करेंगे और जो सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, उसके बाद उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे। अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस आते हैं तो मतलब उसमें क्या है, ऑक्सलेट आयन होने के चांसेस है। नाउ उसके बाद क्या करेंगे कि हम उसमें कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करेंगे। मतलब कैल्शियम क्लोराइड को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होने के बाद हम उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड करेंगे। पोटेशियम पर मैग्नेट है, इसका वायलेट कलर और डार्क पिंक कलर बोल सकते हैं, इस तरह का कलर होता है। अगर पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करने के बाद में जो डार्क पिंक कलर है या वायलेट कलर है अगर वो डिसअपियर हो जाता है मतलब उसमें क्या था, जो सैंपल था उसमें क्या था, ऑक्सलेट आयन प्रेजेंट था। इसके लिए जो रिएक्शन है दैट विल बी, अगर सैंपल में ऑक्सलेट आयन है तो दिस ऑक्सलेट आयन विल रिएक्ट विद CaCl2 and there will be formation of calcium oxalate
COO with calcium and 2 chloride ion. So this is the white precipitate. जो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हुआ था कैल्शियम क्लोराइड ऐड करने के बाद में, वो इस कंपाउंड की फॉर्मेशन की वजह से हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट अगर हमने ऐड किया है, मतलब जो ऑक्सलेट आयन था और जो व्हाइट प्रेसिपिटेट था वहां से ऑक्सलेट आयन है, दैट विल रिएक्ट विद MnO4 नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो हमने यहाँ पे ऐड की थी एसिड, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ Mn2 पॉजिटिव आयन, CO2 गैस विल लिबरेट एंड H2O विल लिबरेट। सो अगर रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो इस तरह से हमें ये बैलेंस रिएक्शन ऑब्टेन होती है। तो यहाँ से हमने क्या एनालिसिस किया कि MnO4 नेगेटिव जो आयन है, जो डार्क पिंक कलर का था, MnO4 नेगेटिव मतलब कि MnO4 जो सॉल्यूशन था डार्क पिंक कलर का था, सो दिस आयन विल गेट कन्वर्टेड इनटू Mn2 पॉजिटिव, और जो पिंक कलर था दैट विल डिस्चार्ज, एंड दिस shows the presence of oxalate ion. Now थर्ड कैटेगरी थी, उसमें डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप था, मीन्स जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें डाइल्यूट H2SO4 को जब ऐड करेंगे तो कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी। अगर रेडिश ब्राउन गैस रिलीज होती है विद पंजेंट स्मेल, देन NO2 गैस, that gas will be of NO2. If colorless gas with the smell of burning sulfur, then SO2 is present. If colorless gas or odorless gas with brisk effervescence, then carbonate or bicarbonate ions हैं that can be present. अगर colorless gas है with root and egg smell, मतलब sulfide ion है, that can be present. So यहाँ से जो observations हमें obtain होंगी, उन observations के basis के ऊपर हम further testing करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फाइड की टेस्टिंग करते हैं। नाउ फॉर टेस्ट फॉर सल्फाइड, सल्फाइड के लिए हम क्या करेंगे, अगर सैंपल है, सैंपल के अंदर सल्फाइड आयन प्रेजेंट है, तो पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे, उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, मीन सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, उसमें लेड एसीटेट ऐड करेंगे एंड देन उसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है, मीन्स जो सैंपल था उसके अंदर सल्फाइड आयन प्रेजेंट था, ब्लैक प्रेसिपिटेट कुछ इस तरह से शो होगा। नाउ इसमें जो रिएक्शन है वो क्या थी कि अगर जो सैंपल है उसमें सल्फाइड आयन है, मतलब वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कोई भी सल्फाइड का सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल दैट इज द सॉल्ट ऑफ सोडियम, सो Na2S है, दैट विल बी रिएक्टेड विद लेड एसिटेट CH3COO twice Pb, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड, और लेड सल्फाइड है उसका होगा ब्लैक प्रेसिपिटेट, मतलब जो ब्लैक प्रेसिपिटेट हमें ऑब्टेन हुआ था वो लेड सल्फाइड का ऑब्टेन हुआ था। तो अगर सैंपल है हमारे पास, जो सॉल्ट का सॉल्यूशन हमने ऑब्टेन किया था उसके अंदर लेड एसिटेट और डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने के बाद में ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है, मतलब सैंपल के अंदर सल्फाइड आयन कंफर्म है। नाउ टेस्ट फॉर कार्बोनेट, कार्बोनेट के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्यूशन लेंगे, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस आती है, मतलब ब्रिस्क एफरवेसेंस किसकी होगी, CO2 के रिलीज की होगी, मतलब जो कंपाउंड है उसके अंदर कार्बोनेट आयन हो सकता है। नाउ अगर यहाँ से जो सैंपल बना था, मतलब जो CO2 गैस रिलीज हुई थी, उसको अगर हमने लाइम वाटर से पास कराया, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर पास कराया, और उसने अगर लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर दिया, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो गई, तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि जो सैंपल था उसमें कार्बोनेट आयन प्रेजेंट था। सो कार्बोनेट के लिए हम क्या करेंगे, लाइम वाटर टेस्ट कैरी आउट करेंगे। अगर कार्बोनेट प्रेजेंट है और उस कार्बोनेट के प्रेजेंस की वजह से अगर लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है, तो मतलब वहां पे कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। सो इस तरह से आज के सेशन में हमने जितनी भी एसिडिक रेडिकल्स हैं, जितने भी एनायंस हैं, उन सब के बारे में, उनके कंफर्मेटरी टेस्ट और उनके प्रिलिमिनरी टेस्ट के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेशन में हम जो बेसिक रेडिकल्स हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।